A very good evening, everyone. Welcome to my channel, Pilot Official. As we all know, today we had a very important examination of the state, that is the Odisha Civil Services. The preliminary examination was conducted today, and the exam was conducted in two phases. Paper 1 was GS and paper 2 was CSAT. In today's video, we are going to discuss the 100 questions that came in paper 1, that is the GS part. Beforehand, let me tell you, in this video, we are not going to do the in-depth analysis of each and every question that came in the paper. Otherwise, the video is going to be very long. Instead, we are going to have a brief discussion on the questions that came and what should be the appropriate solution to each and every question which came in the question paper. Along with that, we are going to have an idea that what are the major subjects that is generally asked in a GS paper. So ये जो वीडियोटा तुम मैंने देखुछ एटा दीटा पिला मानको दीटा कैटेगरी रो पिला मानको पाई बेनिफिशियल हबो गोटे जो माने आज एग्जामिनेशन देइचंती से माने डेफिनेटली आंसर पाइबे सब क्वेश्चंस रो सो दैट से माने इवैल्यूएट करि परिबे तांको स्कोर केते आसुचे एंड सेकेंडली जो माने 2024 पाई कि 25 पाई कि प्लान करूचंती से मानको गोटे आईडिया हबो कि क्वेश्चन पेपर रो लेवल कोन अछि. My personal opinion would be the paper was pretty good. Moderate to difficult level the paper thila. It was not easy at all. So ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯଦି ତମେ ଆୱେୟାର ହେଇଯିବ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଲେଭେଲ କ'ଣ ରହୁଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ ଅପକମିଂ ଇୟର୍ସ ପାଇଁ କି ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବ. ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଏନି ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ସ ଡାଇଭ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ପେପର. ସୋ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେପରଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ତାର ସେଟ୍ ହେଉଛି B. ଓକେ, ଆକର୍ଡିଂଲି ତୁମେ ନିଜର ସେଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସହିତ ତାକୁ ଟାଲି କରିନେବ. I hope you can see the questions. Question number 1, paper number B re asichi. Which of the following organization collects every data on poverty in India? The Manrega achi, NSSO achi, SGSRY achi, and none of these achi. So the answer will be NSSO. Option number B will be the right answer. That is the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Which is a organization जे कि poverty रो data collect करे India रे. Okay. So question number 2 को जीवो. Which of the following helps to measure the poverty determination? Poverty gap index, head count, ratio, sense index, ना all of these अब. So जदि तुम्हें इकोनॉमिक्स रे poverty determination पढ़ी थीबो then तुम्हें definitely जानी थीबो कि जो चारिटा aspect more than आप भी अधिक aspect अच्छी जे कि determine माने determine poverty determination रे help करे, but all of these three also poverty index हेगला, head count ratio हेगला, sense index हेगला, all of these. So our option हबो all of these. ये चारटा जको criteria determine करे तुम्हारा poverty determination को हैला. जो माने ओडिया रे पेपर पढुथिबे तो तांको पई कि से माने accordingly निजर ऑप्शन देखि नेबे. In India, which of the following determine the wage policy? Okay. So according to the Minimum Wage Act of 1948, जो minimum wage टा हमरो revise करा जाए तारो base टा रखा जाए सबु बेले, it is based on the cost of living. So question number 3 option number B will be the right answer. Hello. According to the Minimum Wage Act of 1948. Hello. Which of the following three states in India is considered to be the poorest? So option number कोटा हबो आधेरे. It will be Jharkhand, Bihar and Uttar Pradesh. Jharkhand रो जे तुमे percentage मते पचारिबो, it will be 42.16% poverty rate टा. Bihar रो होची 51.91% and UP रो होची 37.79%. So the correct answer will be option number B, 4 रो. ठीक अछि. Consider the following statement about the Atal Bhujal Yojana. Hello. So Abhitar se कहूची कि which of the following statement I think so is the correct statement. It is conceived to arrest the rampant overuse of underground water in India. Hello. It is supported by the World Bank and it is a sub scheme under the National Groundwater Management Improvement Scheme. Our correct answer hobo all of these. All the 3 points are question number 5 re correct achanti. Hello. It is according to the Atal and Bhujal Yojana. Okay. Next होची tomorrow, in which year is known as the year of demographic divide? Hello, question number 6 रो आंसर होची को year रे tomorrow year of demographic divide बोली consider करा जाए. It is 1921. 1921 को demographic division पाए कि ए year रू ही हमरो माने count करा जायची. Consider the following statement regarding the reason of low sex ratio. Low sex ratio माने होची in comparative to the male counterpart, female मानको ratio टा low हबार. So आपसे पूछे कि which of the following statement related अछि? High maternal mortality, sex selective female abortion and change in the sex ratio at birth. So change in the sex ratio and sex selective female abortion तो directly impact करे,
बट हाई मैटरनल मोर्टालिटी टा गोटे इनडायरेक्ट इंपैक्ट पकाए कहा ऊपर सेक्स रेशियो ऊपर पकाए जे कि लीड्स टू द लॉस ऑफ द पोटेंशियल फीमेल बर्थ तो से लगी ऑल द थ्री तुम्हारा 1 2 3 इज द रीजन फॉर लो सेक्स रेशियो तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर एटा केते नंबर क्वेश्चन गला आई थिंक सो 7 गला तापर आसीबो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 which of the following statement regarding an aquatic ecosystem which of the following statement is correct okay so se कहूची कि the shallow water zone around the edge of the lake is known as littoral zone absolutely correct littoral zone रे तुम्हारा लाइट एटी पहुंचे ओके सो एटा तुम्हारा अराउंड द एज ऑफ द लेक रे कंसीडर करा जाए लिमेंटिक जोन टा इज अ ओपन जोन जोटी फाइटोप्लैंक्टन माने अबंडेंटली ग्रो करंती बिकॉज़ एटी लाइट रीच करे बट क्वांटिटी इज वेरी कम माने वेरी लेस तापरे प्रिफंडल जोन इज द डार्क जोन वेयर द लाइट कैन नॉट रीच सो यस दिस इज डेफिनेटली द रीजन जोटी की लाइट बिल्कुल भी रीच करे नाही से पछरतला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो ऑब्वियसली ऑल द थ्री स्टेटमेंट 1 2 and 3 इज absolutely correct so we have done with question number 8 hello question number 9 which climatic phenomena is characterized by cooler than the normal sea temperature in the central pacific ocean hello तुम्हारे सेंट्रल पैसिफिक ओशन रे जे एवरेज सी टेम्परेचर टा रुहे सरफेस टेम्परेचर टा रुहे ता ठरू जदी टेम्परेचर डाउन हो से फेनोमेना को हमें कोन कहबा इट इज ला नीना ऑप्शन नंबर ए तार जस्ट अपोजिट होची एल नीनो ओके क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा which of the following article is a very important part in polity सब बेले हमें पढ़िला बेले बारंबार कोहा होची कि आर्टिकल टा तुम्हारा बहुत इंपोर्टेंट पार्ट थाए वो वेरियस क्वेश्चन आसे आजिरो पेपर रे भी तुम मन देखिबो सेटा which of the following article of the constitution of india refers to protection and improvement of environment and safeguard of the forest and wildlife कोटा एटा yes everybody 48 ए टा कंफ्यूजन तुमर दीते भीतर होतबो गोटे 48 ए ऊपर होतबो गोटे 51 ए ऊपर होतबो मन रखिता 48 ए टा माने डील करे किबा रेफर करे टू द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड तुमरो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और सेफगार्ड पाएंगे किंतु 51 ए टा से भी डील करे तुमरो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बट एथिरे तुमरो सोल रिस्पांसिबिलिटी टा सिटीजन ऑफ द कंट्री ऊपर एनफोर्स करा जाय हैला सो 51 ए और 48 ए भीतर डिफरेंस अछि करेक्ट आंसर एटी हबो 48 ए which of the following is the primary pollutant एटा टिके बहुत ही बड़ा क्वेश्चन थिला मेजरली पिला एटी भूल कर देथिबे समस्त तो कार्बन मोनोऑक्साइड जानिथिबो सल्फर डाइऑक्साइड जानिथिबो नाइट्रिक ऑक्साइड जानिथिबो सीएफसी जानिथिबो पिला मनकर कंफ्यूजन हेथिबो तुमरो 3 रे और 6 रे हैला VOC टा गोटे पोल्यूटेंट हैला प्राइमरी पोल्यूटेंट एटा एब्सोल्युटली सो तुमरो CO गोटे प्राइमरी पोल्यूटेंट SO2 गोटे प्राइमरी पोल्यूटेंट नाइट्रिक ऑक्साइड गोटे एंड VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी और CFC भी किंतु तुमरो रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट जोटा अछि इट इज नॉट अ सेकेंडरी और प्राइमरी पोल्यूटेंट एटा होछि गोटे वेस्ट टे ओके इट इज अ वेस्ट इट इज नॉट अ पोल्यूटेंट हैला तो C को छाड़ी की बाकी समस्त होजंदी प्राइमरी पोल्यूटेंट सेतले की क्वेश्चन नंबर 11 रे मोर टिके डाउट अछि सिंस तुमरो एमिति को भी ऑप्शन नाही जोतरे की 1 2 3 4 5 अछि हैला एटी लास्ट ऑप्शन रे 6 को भी इंक्लूड कर देछि जदी तुमरो ऑप्शन नंबर डी रे 6 को नथाई देतांता ताले ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ए परतांता तो मते टिके ए क्वेश्चन रे आई एम लिटिल बिट एम्बिगुअस अबाउट इट सो वी विल वेट फॉर द फाइनल आंसर की हैला तो क्वेश्चन नंबर 11 टा मो मार्क कर दो छी तुमरो ये मु सॉल्व करथिली सेते बेले ही मो पेन सर्कल कर देथिली नंबर 12 पे consider the following statement meteorological drought is based on the impact of rainfall deficit on the water supply okay 11 हिगला 12 हमें करूचे and tomorrow तापर से कहूची कि socio economic drought refers to the impact of drought condition on the supply and the demand of economic good हैला so meteorological drought कहाँ पर depend करूची it is based on the impact of rainfall deficit in the water supply that means जोटा natural precipitation हबा कथा गोटे एरिया रे जदी गोटे prolonged time पर्यंत जदी सेठी से एरिया रे the amount of precipitation received जदी लेस हुए ताले हम meteorological drought ताकू कहू किंतु तुमरो socio economic drought हेले कोन हबो ना जेटा होची कि it refers to the demand of economic goods when exceeds the supply as a result of weather related shortfall in water supply जदी तुमरो वेदर रिलेटेड किछि वाटर सप्लाई रे शॉर्टेज होची जहा पाई कि गोटे एरिया रो जति कि भी डिमांड होची गोटे गुड्स को नै कि ता से डिमांड ता एक्सीड करि जाउची जति कि सप्लाई से एरिया प्रोड्यूस करि पारुचे सो एटा हमें सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट बोली कहू तो जे कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ताले एटा बोथ करेक्ट हबो दीडा जाको करेक्टली डिफाइन करूची इजंट इट 12 for C 13 with reference to the cloud seeding consider the following statement से कहूची प्रथम कोन
It is a weather modification technique that improves the cloud ability to produce rain or snow by producing artificial way that rain create करूचो, introducing tiny ice nuclei into certain type of sub-freezing cloud. So this statement is absolutely correct. So one तो correct अच्छी. से कुछ aluminium hydroxide is the most common chemical used for cloud seeding. ए statement टा भूल अच्छे. Okay, तो आर आंसर है जीवो तुम्हारा 13 रो आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन इज करेक्ट. आई विल टेल यू कि को केमिकल सब क्लाउड सीडिंग रे यूज हुए. तुमरो हे गला सिल्वर आयोडाइड हे गला, ड्राई आइस हे गला, पोटेशियम आयोडाइड हे गला, प्रोपेन हे गला, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड आ अमोनियम रे जदी कहबो अमोनियम नाइट्रेट, इट इज नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड. आ तुमरो जोटा कॉमन सॉल्ट जोटा सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया. So these are certain chemicals जे कि हमें यूज करू कोथरे क्लाउड सीडिंग रे. So अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेटला कि हमरो 1 हे जिवो करेक्ट आंसर. ठीक अछि. क्वेश्चन नंबर 14 सहित जीवा. नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जहाँ को हमें कहूँ इज लॉन्च्ड by the government to monitor the quality of air in major urban centers across the country on a real time basis and enhancing the public awareness to mitigative action. In context to this, read the following statement. प्रथम statement कहूँ AQI will have number one माने one number, one color, one description to improve the public, to inform the public about the air quality in a simple and easily understandable format. It is absolutely correct. एटा absolutely correct अछि. से कहूँ कौन ना आर आंसर मैं तुमको आगे कहि दोछि. It will be D. तुम्हारा आंसर आर कौन हे जिवो D हे जिवो. हैला एटा इंडिया रे केबे लॉन्च हेतला मने रखिता. इट इज April 6 2015 रे. हैला 2015 रे एटा तुम्हारा लॉन्च हेतला. एटा होची यूज करिवो तुम्हारा गोटे नंबर, गोटे कलर और गोटे डिस्क्रिप्शन, गोटे पर्टिकुलर जगार एयर क्वालिटी को डिस्क्राइब करिया पाए. सेकेंडली एथिरे तुमे 6 कैटेगरीज रे तो डिफाइन करा हेची, जेंति गुड, सैटिस्फैक्टरीली, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर. एंड tomorrow which are the index jago consider kara jaichi as 8 pollutant PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, ammonia and lead. Hela. So 1, 2 and 3 all the statements are correct. So 1, 2 and 3 is the right answer. And eta India re launch heitila April 6 2015 re. Okay. So 2015 रो भी question आसुची. Okay. So which of the following best describe the team deep ecologism? टर्म जो डीप इकोलोजिज्म तो एटा तुमरो आरो करेक्ट डेफिनेशन कोन हैला. सो जदी तुमे आ ऊपर पढिथिबो तुमे जानिथिबो whenever all the living thing okay has an inherent value and they deserves respect and protection. तो सेटा ही डिफाइन करे. तो एठी जदी हमें पढिबा इट इज अ फिलॉसफी दैट बिलीव्स humans should radically change their relationship with nature. हैला. दैट मीन्स कि सेमाने नेचर संगरे गोटे तुम्हें कहि परिबो कि गोटे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करबा कथा सो दैट कि सेमाने बैलेंस क्रिएट करि परिबे नेचर रे एंड सेमाने माने निज रिलेशनशिप को इंप्रूव करिया कथा. काहे कि ना प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनाइजम गोटे इनहेरेंट वैल्यू सहित इकोलॉजी को कंट्रीब्यूट करे एंड समस्त गोटे इक्वल प्रोटेक्शन एंड रेस्पेक्ट डिजर्व करंती. तो ऑप्शन नंबर बी टा तुम्हारा करेक्ट आंसर हबो. इट इज नॉट अबाउट ओशन इकोसिस्टम, इट इज नॉट अबाउट only humans. It is all about the nature and the behavior of human beings towards the nature. Hela. तापरे में जीवा नंबर 16 को. The ability of a population to increase under the ideal environmental condition is called. ताको हमें कौन कहबा ना जो maximum rate at which a population can increase ताको कौन कहै जाय. It is biotic potential. तो नंबर 16 रो आंसर हे जीवो C. हैला. नंबर 17 जीवा. Which disaster is most likely influenced by climate change? देखो सबू disaster actually हमरो climate सहित जो हमरो interaction हुए जोटा कि destructive हमरो approach था towards the nature तारो ही impact था disaster. But ये जो climate change अछि ये directly कहा को initiate करे किबा कहा को तुम्हें promote करे. it is tropical cyclone को केमिति ना जदी हमरो climate change हबो ताले हमरो warm ocean current create हबो जोटा कि influence करिवो more intense and frequent tropical cyclone को. तो direct आरो मोस्ट लाइकली कहिछि से कहनी कि एग्जैक्टली कोटा अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन are all result of climatic change only or all the result of the human destructive approach towards nature. किंतु मोस्ट लाइकली कोटा ट्रॉपिकल साइक्लोन हैला. तो एटा टिके माने भलो गोटे भलो क्वेश्चन टे. क्वेश्चन नंबर 18. Tidal waves are caused by which of the following gravitational interaction? हैला. हमें समझते जान के वेरी इजी क्वेश्चन. क्लास 8 पिला भी जानि थिबे. इट इज ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑन द अर्थ. हैला.
मून रो ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑन द अर्थ इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग टाइड्स और टाइड वेव्स ओके तापर एटा गोटे तुमरो लीनियर एक्सपेंशन ऊपर गोटे क्वेश्चंस आसीची तो तुम गोटे स्क्वायर शीट टे थिबो से स्क्वायर शीट को जे तुम सेंटर रू होल कर दोछ एंड देन ताको तुम हीट करूछ एंड द साइज ऑफ द होल डिक्रीज करूछ बिकॉज़ जेतला को तुम हीट करिवो ताले स्क्वायर शीट ता एक्सपैंड करिवो जदी एक्सपैंड करिवो ताले रेडियली सर्कल टा रेडियली कोन हबो एक्सपैंड करिवो ते सर्कल रो साइज कोन ही जीवो इंक्रीज हबो बट आम क्वेश्चन कहूची द साइज ऑफ द होल विल डिक्रीज एंड जदी डिक्रीज करूछ दैट मीन डेफिनेटली केबे हीट तो हेई नथिबो तो इट्स द कूल हेइथिबो गोटे होची 100 डिग्री गोटे 10 डिग्री जदी तुम कैलकुलेशन यूज करिवो तो तुम देखिबो कि 10% इंक्रीज करिया पई कि द शीट हैज टू बी कूल बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड हैला तो 19 द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर तापर नंबर 20 को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बहुत भलो क्वेश्चन टे थिला एक्चुअली बहुत ही बड़ा जे जानि थिबे से माने करिथिबे अदरवाइज मैक्सिमम पिला भूल करथिबे थर्मल कंडक्टिविटी लीस्ट कहार हैला मेटल रो बहुत भलो थर्मल कंडक्टिविटी थाए अलॉय रो भी भलो थाए ओके सेमीकंडक्टर ना सुपर कंडक्टर इट इज माने रखि तो सुपर कंडक्टर रो हैला सुपर कंडक्टर रो थर्मल कंडक्टिविटी वेरी वेरी लेस थाए हैला सिंबल व्हिच इज यूज्ड देखो गोटे छोटो माने स्कूल लेवल रो बेसिक क्वेश्चन पढिछि साइंस रो symbols and valency रो symbol of material used in the convention of glass thermometer हमें कौन यूज करूचे मटेरियल मर्क्यूरी यूज करे मर्क्यूरी रो सिंबल कौन Hg काई ना तार लैटिन नेम होची हाइड्रोजाइरम तो आंसर कौन ही जीवो बी ही जीवो हैला तो क्लास जो वन टिके बेसिक केमिस्ट्री जानि थिबे डेफिनेटली आराम से 2 मार्क्स माने फेच करि देबे निजे पय द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ लैंड नियर द सी इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू दैट far from the sea एटा काहे की what is the reason behind it आर रीजन होची द हीट कैपेसिटी ओके द रीजन होची कोन आ रही जीवो आंसर इट इज होची कोन द सी अब्जॉर्ब्स द हीट तुमे कहि परिबो बिकॉज़ काहे कि ना सी रो वाटर रो तुमे कहि परिबो इट इज हैविंग तुमरो वेरी हाई कैपेसिटी हीट कैपेसिटी ना एटा होची द हीट द सी अब्जॉर्ब्स द हीट ओके द रीजन बीइंग कि तुमरो वाटर रो जोटा हीट कैपेसिटी टा बहुत हाई थाए कंपेयर टू तुमरो सॉइल ऑफ रॉक सेति लगी सी रो बहुत अधिका हाई हीट कैपेसिटी अछि दैट इज व्हाई से अधिका टेम्परेचर कोन करि परिबो अधिका हीट एनर्जी कोन करि परिबो ऑब्जर्व करि परिबो 23 को देखो एटा गोटे बहुत बड़ा क्वेश्चन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू क्रिमिनल लॉज एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट हैला सो द न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता came into effect on April 1 2023 is it correct or not एटा करेक्ट अछि ना भूल अछि एब्सोल्युटली करेक्ट अछि से हमको क्वेश्चन कोन पचारथिला आई थिंक सो व्हाट इज द करेक्ट पचारथिला तो करेक्ट आंसर इज 1 and 4 ओके इट विल बी 1 and 4 yes 1 and करेक्ट पचारछि सॉरी 1 and 3 हबार आंसर 23 रा आंसर ना जस्ट अ मिनट came into effect in April 20,000 एटा 2 ता एब्सोल्युटली भूल अछि जुलाई 1 रे आ गोटे भारतीय प्लेस बाय द पार्लियामेंट इन डिसेंबर 2004 4 ता एब्सोल्युटली रॉन्ग अछि सेटा तो भूल ही हबो बट इफ आई से पचौची हमको करेक्ट कोटा अछि करेक्ट होची 2 जदी भूल हे जाउची 4 जदी भूल हे जाउची 1 and 3 ऑप्शन अछि कि 1 and 3 ऑप्शन नाही okay which of the following statement are correct with respect to the I will tell this answer in the comment box हैला इतरे मते टिके प्रॉब्लम लागुची प्रथमे तो से कहूची कि इट रिप्लेसेस द इंडियन पेनल कोड एटा पूरा भूल अछि काहे कि ना से एड्रेस करे द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस ओके रेमेडीज को नहीं की तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एटा रिप्लेस करे इंडियन पेनल कोड को तो 2 तो एब्सोल्युटली भूल अछि एंड द न्यू क्रिमिनल came into effect in April 2023 and came into effect in July. So मु एटा टिके तुमको कमेंट सेक्शन रे कहि देबे एटा मते टिके कंफ्यूजन अछि 23 रे 24 को जिबा 24 बहुत इजी क्वेश्चन थिला रॉन्ग मैच पछे तुमरो जदी तुमे कहबो कि स्वच्छ साथी दिया मिर्जा एब्सोल्युटली करेक्ट एटा अछि पीवी सिंधु पल्स पोलियो अमिताभ बच्चन ओके सिटी कंपोस्ट कैंपेन भी अमिताभ बच्चन तो 2 टा भूल अछि 3 टा करेक्ट अछि सचिन तेंदुलकर मेक इन इंडिया ना रसनार जे को फाउंडर अछंती किबा चेयरमैन अछंती दैट इज प्यूरज खंबल तंका नाटा से होचंती तुमरो मेक इन इंडिया रो एम्बेसडर माने फॉर द गवर्नमेंट सेति लागि 4 टा इज रॉन्ग एंड 2 इज रॉन्ग से कुछ रॉन्ग मैच कोटा थिला तो ऑप्शन नंबर कोटा आइजबो 24 रो बी आइजबो हैला दिया मिर्जा इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड अमिताभ बच्चन फॉर द सिटी कंपोस्ट कैंपेन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हैला ओके
which of the following statement is correct with respect to the earth rotation in 2024 ହେଲା अर्थ रोटेशन को 2024 को आदर कोटा सबुठु करेक्ट ऑप्शन अछि एवरीबॉडी ठीक अछि 2023 टा मु नोट कर दउछि टिके पेन रे मु 23 रो आंसर तुम मानको को कहिबी एंड ऑफ द क्लास रे मु कहि देबी मु पूरा पेपर टा डिस्कशन कर सारे आगे 25 होछि which of the following statement are correct in respect to the earth rotation day 2024 hello so it will be what earth rotation day tomorrow 8 January 8 of every year is celebrate हुए okay this day is dedicated to the acknowledging the discovery of the earth stage okay 25 रो आंसर tomorrow हिजबो ऑप्शन नंबर D टा that is 1 and 4 correct पचरछि ना so tomorrow honoring the discovery of our planet moment this is the first correct statement and tomorrow जो स्टेटमेंट अच्छी कि एटा एवरी ईयर 8th ऑफ जनवरी रे सेलिब्रेट हुए तो दीज टू आर करेक्ट हैला तो 25 रो आंसर तुमरो ही जीवो करेक्ट पचार थिला से इनकरेक्ट पचार नथिला सो इट विल बी 1 and 4 हैला 25 रो डी हबो तापर पचारला व्हिच इज नॉट करेक्ट एटा बहुत भलो क्वेश्चन ते थिला एटा बहुत माने पिलांगर डाउट थिला प्रथमे तो शी वाज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 decades 2 टाइम्स थिला 2 decades ओके तापरे होची द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जॉब कोटा टर्न्ड इनटू एंटी गवर्नमेंट एजुकेशन ओके सो इट इनकरेक्ट पचारि थिला सो इनकरेक्ट रे तुमरो एटा जो थिला द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश हैज रूलिंग ऑफ 30% रिजर्वेशन इन जॉब एंड प्रथम इनकरेक्ट थिला 4 एटा पूरा श्योर अछि काहे कि ना के बांग्लादेश नेशनल पार्टी रो प्रेसिडेंट नथिले तो 4 वाज इनकरेक्ट तो हमें देखिबा कि 4 गोटे तो 4 को हमें रिमूव करि परिबा okay 4 जदि incorrect अछि 2 incorrect अछि कि yes 2 was also incorrect so 1 and 3 would be the right answer मते आरो आंसर 1 and 26 रो आंसर ता से कुछ incorrect होछि तो incorrect would be 2 and 4 yes so मु जते बेले परीक्षा रे क्वेश्चन ता देखिली सेते बेले मु केमति क्लिक कली मु एटा जानिथिली कि से 2 टाइम्स पई कि प्राइम मिनिस्टर हेतिले बांग्लादेश रो ओके सेटा मु श्योर थिली से जिंस को नै कि तापरे 2 and 3 ऑप्शंस को नै कि आई वाज नॉट दैट श्योर किंतु 4 ऑप्शन टा जो देखुछ शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश नेशनल पार्टी तो एटा एब्सोल्युटली रॉन्ग अछि शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश नेशनल पार्टी आ 8 स्टेटमेंट रे पचरतला व्हिच इज नॉट करेक्ट तो 4 को हमको खोजियार थिला आ को भी ऑप्शन रे 4 नथिला केवल ऑप्शन नंबर डी रे थिला दैट इज व्हाई इट विल बी द करेक्ट आंसर हैला तो सेट लागि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन द्वारा भी 26 को नंबर डी मार्क करि परिबा हैला तापर से कोची द पेरिस ओलंपिक 2024 मेडल कंटेन मेटल फ्रॉम व्हिच ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क को लैंडमार्क रो ए मेटल यूज करा जाय छी 27 होची द आईफिल टावर वी नो केते रेलेवेंट अछि आईफिल टावर ओके तापर व्हिच इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओलंपिक रो फ्लेम रिगार्डिंग कोटा भितरे करेक्ट अछि एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 रो आंसर आगे जाने दियो 28 रो आंसर होबो डी माने ऑल 4 okay so the modern olympic torch jota achi it was received by Carl Dem of Germany olympic torch 2024 re lit kara haitila 16th April 2024 re the olympic torch was lit in Greece and was passed from one to the next torch bearer in each hosting and the olympic flame is a symbol of unity sportive and sportivity and victory so 28 ro correct answer he jibo tomorrow D okay all of the above हेलो ठीक अछि तापरे 29 which is correct with respect to the राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 29 okay so this award is given to 5 team एटा completely भूल अछि करेक्ट पचरछि ना नॉट करेक्ट पचरछि करेक्ट पचरछि तो 3 भूल अछि काहे कि ना डिपेंड करिवो प्रति वर्ष वेरी करे so 3 टा पूरा पूरी भूल अछि and it a government of India 2023 रे दिया जायतिला absolutely भूल 1987 रे इतला हैला तो 1 ऑलरेडी भूल इतलानी 3 4 कैटेगरी रे दिया जाय absolutely correct and 2 टा absolutely correct अछि 4 कहूची कि 2024 रे चारटा साइंटिस्ट को दिया जाय जेटा absolutely correct अछि so 2 and 4 करंट अफेयर डायरेक्ट क्वेश्चन एटा tomorrow 2 and 4 correct हबो that is option number 29 रो बी हे जिवो 2 and 4 is absolutely correct incorrect question नथला correct question को हाईलाइट करथिबो which bank is included only one bank gotiye bank included achi fortune global 500 listed 2024 it is state bank of india achi and that too se kete rank re achi ke koi peribo 78th rank re achi 178 hello 31 union budget samaste podi ki jaithibo okay
समस्त डेफिनेटली पढ़ी जाइए से कौन करेक्ट कौन टोटल एक्सपेंडिचर 48.21 लाख करोड़ करेक्ट अच्छी रेसिप्ट इंक्लूडिंग बोरोइंग 32.07 लाख करोड़ करेक्ट अच्छी फिजिकल डेफिसिट केते प्रोजेक्ट कराया था 6.8 नो इट वाज 4.9 माने देखो कि फैक्चुअल क्वेश्चन आसी छी नेट टैक्स रिसिप्ट 34.83 इट वाज 25.83 लाख करोड़ तो 3 and 4 टा भूल अछि से करेक्ट पचारथिला इट विल बी 1 and 2 तो 31 रो ऑप्शन हमरो ऑप्शन नंबर ए हबो 1 and 2 हैला तापरे हमें जीवा 32 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूज होइछंती पिल्ला एथिरे ताकू भी हमें एलिमिनेशन मेथड रे करबा प्रथमे देखो जे पचाउची करेक्ट पचाउची ना यस यदि करेक्ट पचाउची एमंड हिलारी से स्विस रो नेशनल कहूची ना न्यूजीलैंड रो हैला सेति लगी 4 टा तो भूल हे गला तो देखो जोटी 4 अछि ताको एलिमिनेट कर दियो तो तुमर ए ऑलरेडी एलिमिनेट हे गला एंड डी एलिमिनेट हे गला आर करेक्ट आंसर एक्चुअली हबो बी हैला काहे कि ना तुमर एठी से कहूची प्रथमे तो 29th में एवरीडे इंटरनेशनल एवरी ईयर इंटरनेशनल एवरेस्ट डे बोली सेलिब्रेट करा जाए इन द मेमोरी ऑफ तेंजिंग ऑफ एडमंड हिलरी को मेमोरी रे एंड दिस डे इज ऑब्जर्व्ड बाय नेपाल इन 2008 इन कमेमोरेशन ऑफ तेंजिंग नॉर्वे हु पास्ड अवे ऑन दिस डे इट एब्सोल्युटली करेक्ट अछि 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट 3 काहे की भूलेला 3 रे से कहूची कि ये तो इथि लगे हम सेलिब्रेट करू ग्लोबली फॉर ह्यूमन एंड्योरेंस रेजिलियंस एंड स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन ना एटा एक्चुअली सेलिब्रेट करा जाए ए डे को फॉर कनकरिंग माउंट एवरेस्ट हैला तो सेति लगे ऑप्शन नंबर 3 टा भी भूल थिला तो 1 and 2 वाज करेक्ट तो बी हे जिवो एलिमिनेशन द्वारा भी हमें कर परता हैला सो एज पर द डाटा 33 देखो एज पर द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया टॉप द कंट्री इन ऑर्गन डोनेशन के डायरेक्टली करंट अफेयर तेलंगाना हैला डायरेक्ट क्वेश्चन एटा अछि गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज हैला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कहूची ओके द प्राइज 34 एटा 34 रो करेक्ट आंसर हे जिवो कि एटा तुमरो दिस प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1989 बाय एन अमेरिकन कपल जे कि रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन थिले तो एटा तो तुमे ना रु भी रिलेट करि पारिबो तो 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट दिस प्राइज इज अवार्डेड in the honor of grassroots environmental leader in global recognition हैला जेतु environmental अछि तो एई दिटा को हमें माने डायरेक्टली हमें आईडिया लगे परथांते तापरे जदि तुमरा करंट अफेयर ऊपर आईडिया थिबो ताले तुमे कह दे परिबो कि आरो कैश प्राइस केते थाए एंड प्रफुल्ल सामंतर वाज ही रियली अवार्डेड और नॉट तो 34 आंसर कोन हे जिवो इट इज 1 and 2 करेक्ट पचारिथिला तो आंसर हे जिवो तुमरो 1 and 2 तापर से कहूची कि तुमरो जो इंडियन टुडे ग्रुप रो जे न्यूज एंकर अछंती अकॉर्डिंग टू एआई न्यूज एंकर अछंती तांको ना कोन तांको ना होची सना हैला एटा बहुत ही न्यूज रे हाईलाइट हेतला तांको ना थिला सना 35A 36 हबो व्हिच ऑफ द वंतरा को ने कि करेक्ट जिंसडा माने हमको प्रेडिक्ट करबार अछि सबुडरो एटी होची रिलायंस एटा तो एब्सोल्युटली करेक्ट हबो हैला एंड एटी देखो इट इज अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर आफ्फॉरेस्टेशन एटा पूरा पूरी भूल एटा एनिमल वेलफेयर आफ्फॉरेस्टेशन को से प्रमोट करूनी एनिमल वेलफेयर एंड कंजर्वेशन को प्रमोट करू जेटा भूल हे गला तो 1 को देखि के एलिमिनेट करि परिबा हमें 1 को देखले हमर ए आउट डी ऑलरेडी माने आउट हे गला आउट ऑफ द लिस्ट हे गला तो 36 रो आंसर हमें कोन करबा ना सी करबा काहे कि सी कले देखो आउट तुमको एलिमिनेशन करे दोची इट स्टार्टेड इन द ग्रीन बेल्ट ऑफ जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हरियाणा रे नो इट इज गुजरात रे अछि सेत लगी एटा 3 भी भूल हे गला सो इट इज ओनली 2 and 4 तुमर ऑप्शन नंबर सी रे अछि हैला which of the following statement is correct with respect to the alliance of Sahel states हैला एटा जदी जानि थिबो करि परथिबो अदरवाइज एटा कंप्लीटली भूल हेजबो तुमरो 37 रो आंसर होची डी इट इज 1 and 4 हैला 37 रो आंसर तुमरो डी हेजबो ओके डी माने तुमरो इट इज अ confederation formed between 3 states if only when you know the answer you can do it otherwise करि परिबनी हैला माने ऑनेस्टली कहया को गले इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन रे जीवो जदी तुम एक्जेक्टली तुम पकरे क्लियर फैक्ट्स थिबो तुम करि परिबो एलिमिनेशन मेथड इटी एंड एठी गोटे जिंस मु खाली कहि परिबी कि जो ऑल द 3 स्टेट्स जो माने एथिरे फॉर्मर मेंबर्स थिले से माने वेस्ट अफ्रीका रो थिले तो एठी लगे हम 3 को एलिमिनेट करि परिबा आ जदी तुम 8 करंट अफेयर रे पढी थिबो ताले जदी तुम 3 एलिमिनेट करि परिबो ताले ऑप्शन नंबर बी और सी कटि गले तुम्हें कंफ्यूजन केवल 1 और 2 भितर हबो माने ए और डी भितर हबो देन तुम्हें जदी एक्जेक्टली जानि थिबो कि 4 एब्सोल्युटली करेक्ट अछि देन यू कैन गो विथ इट हैला बट स्टिल इट आई विल कंसीडर दिस क्वेश्चन एज डिफिकल्ट बट आवर आंसर हबो तुमरो डी
ओके डायरेक्टली जो मैंने करिथिबो तो चेक कर दबो 37 रो आंसर हबो डी हैला 38 देखो व्हेन वाज वेरी माने वेरी ट्रिकी क्वेश्चन महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन केबे डिक्लेयर करा जायतिला ऑफिशियली केबे डिक्लेयर करायनी नेवर ऑफिशियली 38 रो आंसर हे जो तुम्हारो डी इन इंडिया एवरीवन नोज इट इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री people often know 3 or more languages okay in this context which of the following statement is more correct तो मैं डायरेक्टली आंसर कह दूची 39 रो इन इंडिया अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज बाइलिंगुअल एंड 1/10 इज ट्राइलिंगुअल तो इंडिया रे जति की पॉपुलेशन अछंती 1/3 तो मोर देन 2 लैंग्वेज तो कहि पारुथा ना 2 लैंग्वेज तो कहंती एंड बाकी 1/10 3 लैंग्वेज भी कहि पारंती हेला मल्टीपल लैंग्वेजेस इन इंडिया रे लोक कथा हुवंती Bhatri, Bhuiya and Desiya is analogous to what? If you know, you will be able to do it. Otherwise, you will not be able to do it. Our answer mu directly कह दूची PQ because our detail theory माने पढ़िया को पढ़िबो. So एठी तुमे देखि परिबो Bhatri, Bhuiya and Desiya analogous to होची P and Q. That is तुम्हारो भागरी, भतेली, काहुली, चमका, हैजोंग and राजवंशी. So एटा but not R and S. तुम्हारो अवधि and गाजुरु को एटा analogous नुहे. So it will directly तुम एटा करिवो ऑप्शन नंबर 40 रो हेजिवो आंसर नंबर ए हैला व्हाट वाज लाहौर सेक्शन 1940 अबाउट कौन थिला अ यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम डायरेक्ट क्वेश्चन एटा ए टाइप रो क्वेश्चंस तमे भूल करि परिबानी ए यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम तापरे डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वाज फर्स्ट फ्लोटेड टू एंश्योर व्हाट कौन पाई कैंसर टू माने जो माने पर्टिकुलर प्रोविंसेस रे जो माने सेम लैंग्वेज कहउतबा लोक मानको को रिकॉग्निशन मिलु सो पीपल स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज गेट रिकॉग्निशन 42 रो आंसर हिजबो तुम्हारो ए हैला सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंसीडर इटसेल्फ टू बी द पैरामाउंट पावर इन इंडिया कहां पर है आफ्टर साइनिंग अ ट्रीटी विथ रंजीत सिंह 1809 माने 43 रो आंसर तुम्हारो हिजबो बी signing a treaty with Ranjit Singh in 1809 direct question है सब क्वेश्चन को you cannot afford to do mistake. The major modern judicial court in India presided over Elijah Enfield was set up. Court set up hitila. It was in 44 court hitila Kolkata. Okay. Direct question now gote. The motto Yato Dharmasya Jaya was adopted kohutu the Supreme Court of India. 45 ro answer tomorrow is D. Was adopted by the Supreme Court of India. Okay. Odia say related dekhi dabo. So which institution makes the arrangement to keep science, society and industry on the same page? It is very बहुत easy टिक्के जदी जानती हो IIT हो जो technological है ना Department and Science and Technology TIFR तो ऐसे regular हमें सुनी न था CSIR जोटा है ना तो सेटा बने believe करे कि development सोसाइटी और इंडस्ट्री तीनटा को कोऑर्डिनेट करी की बैलेंस करी की चलेबार तो एटा टिक्के कॉमन सेंस रे भी ए क्वेश्चन को करी हबो डायरेक्ट एक्शन डे कहा को रेफर करा जाए डायरेक्ट एक्शन डे 47 जस्ट अ मिनट ओके डी हैला 45 रो डी हैला 47 आंसर करो डायरेक्ट एक्शन डे होची इट इज द डे व्हिच वाज मार्क्ड बाय मुस्लिम लीग फॉर टेकिंग डायरेक्ट एक्शन टू असर्ट देयर पॉलिटिकल डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड एटा होची डायरेक्ट एक्शन डे बोली आपको रेफर करा जाए हैला which is one of the earliest mention of the भारत वर्ष कोउथरे मेंशन करा जायतिला बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन 48 रो सी हबो द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रे भारत वर्ष विषय रे मेंशन करा जायतिला which place is known as the city of caves छोटो बळु पढुचे हमें जीके रे पढुचे 49 मुंबई हार्बर रे अछि सेटा कोन घारापुरी मुंबई हार्बर रे लोकेटेड सिटी ऑफ केव्स ओके माने एलिफेंट केव्स बोली भी कहा जाय हैला तापरे काटक केव्स रेफर्ड टू अमंग अदर्स ओके तो इटी कोन हिजबर आंसर करो आंसर 50 रो आंसर हिजबो PQR बट नॉट S माने हाथी गुंफा रानी गुंफा कुमारी पर्वत एंड अलकपुरी गुंफा एटा PQR हबो बट S नुवा महेंद्रगढ़ नु एंड ऑल ऑफ दिस आर खंडगिरी उदयगिरी संगरे तुमरो लिंक अछि हैला सो PQR 50 रो आंसर हिजबो तुमरो A 51 The Kalinga Prize was given for कोच पाई के दिया जाए कलिंगा प्राइज yes 51 for the achievement of a science popularizer okay 51 रो हिजबो ऑप्शन नंबर B तापरे 52 the achievement of Pandit Gopabandhu Das was in which field it was in national movement hello freedom fighter thile isn't it so national movement hello 52 रो आंसर हिजबो C direct question तापरे Zero casualty at any cost ZCAAC direct question eta is a principle followed by
गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एटा अछि ठीक अछि सो जदि पढ़ी थिबो जानि थिबो अदरवाइज स्टेट विषय भी यू नो कि द डिजास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटी इन ओडिशा हैज earned name and fame in the entire world okay last 10 to 15 years भितर जति कि डिजास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटी ओडिशा इंप्रूव करिछि एंड ये माने जोड़ा कि माने कमेंडेबल एंड थ्रू आउट द नेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड भी तार रिकॉग्निशन अछि तो सेडा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा राइट आंसर हबो 53 रो आंसर हिजबो तुमरो सी 54 Porus is said to be has gifted Alexander कौन देथिले बॉक्स ऑफ मैंगोज ठीक है विजार्ड क्वेश्चन अछि बट स्टिल गुड हैला a famous architecture विश्व महाराणा is associated with छोटे बळु हमें पढुछु धर्मपद है ना धर्मपद रो स्टोरी हमें छोटे बळु पढुचे तो सेटा कोन हे जिवो इट इज योर 55 रो आंसर हे जिवो ए सन टेंपल यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दिस क्वेश्चंस रॉन्ग ओके टिके मिस्टेक कर देला माने क्वेश्चन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हे बिकॉज़ आपको समझ से ठीक करिवे isn't it at the end of the civil disobedience movement gandhiji took out a padayatra against untouchability his first padayatra was undertaken in 1934 कोडी एतला 56 रो आंसर कोन हे जिवो के को नागपुर isn't it पढी छै मेटा डिटेल्स रे तापरे the infamous Rowlatta Act was opposed by Indian because it is provided for कौन है जीवो माने trying a sedition case without a jury and holding suspect in jail without trial 57 रो डायरेक्ट माने ऑप्शन नंबर ए रे आंसर अछि माने विदाउट गोटे सस्पेक्ट को बिना ट्रायल रे ताकू होल्ड करिबा ओके which of the following is a bauxite deposit largest Odisha geography ro it is the पंचपत मली डिपोजिट इन ओडिशा एटा लार्जेस्ट इन इंडिया अछि बॉक्साइट डिपोजिट एटा तो समस्त जानि थिबो व्हिच स्टेट शेयर्स द तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कोउ दिटा स्टेट भितरे तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शेयर करा जाय छि आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक 59 रो आंसर कोन हे जिवो ए हैला तापरे match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below okay Chinook कोड आइ जिवो 60 रो तुमरो करेक्ट आंसर हे जिवो ए Chinook रो हे जिवो तुमरो अफ्रीका ओके सिरोको रो हे जिवो सिरोको रो हे जिवो अफ्रीका Chinook रो हबो यूएसए ब्रिक फिल्डर रो हबो तुमरो ऑस्ट्रेलिया एंड मास्टल रो हबो यूरोप सो 1423 1423 हैला तो 60 रो आंसर हे जिवो तुमरो ए हैला नेक्स्ट ओनली लैंडलॉक कंट्री साउथ ईस्ट एशिया रे ओनली लैंडलॉक आखि अगर आंसर अछि लाओस हैला डायरेक्ट क्वेश्चन तापरे एटा कोन हे जिवो ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ सिटीज माने एते भी माने ये रे डेप्थ रे पछारुची से बुझी परछ तो माने भाबो प्रिपरेशन रे लेवल कोड क्वींसलैंड डायरेक्टली माने टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस नेम्स isn't it so 62 रो आंसर तुमरो हेजबो अदर कुछ एक्सप्लेनेशन ही नाही यू आइदर नो अदरवाइज यू डोंट नो 62 रो आंसर तुमरो हेजबो ऑप्शन नंबर सी हैला देखि दबो 2143 डायरेक्टली तुम गूगल कर दे परिबो और आंसर को डायरेक्टली तुमको मिल जिवो ए सब क्वेश्चंस रे किछ एक्सप्लेनेशन नाही इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज एक्सटिंक्ट ऊपर सब बळे आसे ओके ना रेड लिस्ट रे जो स्पीसीज माने थांती तांको ऊपर सब बळे क्वेश्चन आसे प्रति वर्ष इट इज एशियाटिक चीता मतलब इट इज अ गुड क्वेश्चन ए टाइप ऑफ क्वेश्चन को भलो क्वेश्चन को माने कंप्लीटली फैक्ट क्वेश्चन को तो भलो क्वेश्चन को आ जाय परिबनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड पेयर आ भितरे जून midday sun overhead on tropic of cancer december tropic of capricorn march equator september कोची midday sun over arctic circle it is wrong it is overhead कोडी अछि midday sun overhead on equator september so this is wrongly matched so wrongly matched पचरुथिला हैला incorrectly matched okay तापर पचरुछि which of the following term describe not only the physical space सबोले हमें पढू niche isn't it 65 रो आंसर कोन हे जिवो इकोलॉजिकल निशे माने गोटे ऑर्गेनाइजम नाही सेठी केवल रुहे बट सेठी तार फंक्शनल रोल भी थाए ओके माने रहिबा हैबिटेट सहित तार निजर कर्म क्षेत्र भी सेटा थाए फंक्शनैलिटी ओके इकोलॉजिकल निशे विल बी द राइट आंसर सो इन द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज काहे की व्हाई 66 रो आंसर कोन हे जिवो इट इज बिकॉज ऑफ द वाटर लिमिट्स एंड फायर 66 रो सी हे जिवो राइट आंसर 67
आ भितर which of these is known as decomposers? Virus decomposers नुहंती fungi and bacteria. Fungi and bacteria are decomposers. So 2 and 3 will be the right answer. 67 रो answer is B, isn't it? तापर 69 68 देखो which of the following is a process involved in photosynthesis? Photosynthesis रे कौन हुए? The freeze energy sunlight convert हुए कोउतरे into your potential energy माने chemical energy food हिसाब रे store हुए and सेटा stored हो जाए तो कौन है जीवो potential energy stored into food? Absolutely भूल. Food oxidize एटा को respiration कुआ जाए. Oxygen is taken in carbon. This is not known as photosynthesis. एटा होची तार byproduct. Actually main होची free energy is converted to potential and stored. Hello. तापरे consider the following: carbon dioxide, oxides of nitrogen and oxides of sulfur. Hello. Which of the following are the emission from the thermal power plant? अभी तेरे कोटा तुम्हारा thermal power plant रो emit होची. All of the three. 1, 2, 3. Hello. Which of the following earthquake is more destructive? माने रखी तो surface wave सब बड़े destructive था आंटी and से surface wave रो सब उठो air टा बेसी destructive था. तो आंसर डी ही हबो. तापरे झूमिंग कल्टीवेशन सब बड़े परीक्षा रे आसीची. पूर्वा इन which region? कोउ रीजन रे 71 रो आंसर होची इन झारखंड. हैला नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन एटा उडे. तापरे होची मैच द कॉलम आसीची तुमरो माने ग्लेशियर्स एंड माने डिपॉजिट्स को नै की तो आरो आंसर मु डायरेक्टली कहि दोची 72 रो आंसर हिजबो तुमरो बी. चेक कर दबो 3214. ओके 3214 विल बी द राइट आंसर. कहारो ना 72 रो. हैला ओके 73 रे एठी गोटे मोर प्रॉब्लम अछि. 73 आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन. ऑगस्ट ऑफ 1940 को नै की कहूची इट इज अ नॉमिनेटेड इंडियन बॉडी वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर माने तार कोन कोन सब टर्म्स थिला. हैला सो डेफिनेटली एटा थिला कि नॉमिनेटेड गोटे इंडियन बॉडी फॉर्म करा जिवो आफ्टर द वर्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक अछि. मोर इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे जॉइन करिवे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को. गोटे एडवाइजरी वर्क काउंसिल वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड. तो एटा करेक्ट अछि. केवल 2 कहूची डोमिनियन स्टेटस वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव. इट वाज एन ऑब्जेक्टिव. तो 2 टा रॉन्ग अछि एंड से कहूची व्हिच इज नॉट इन द टर्म. तो 2 टा तो नहीं बट रेस्ट आल्सो आई थिंक अछि. इसलिए आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन. 73 रे मोर टिके डाउट अछि. ओके मत पर्यंत दीटा क्वेश्चन ऊपर ही आई हैव डाउट. हैला बाकी सब क्वेश्चन तो डुएबल अछि और जोटा डिफिकल्ट अछि दैट वी कैन फाइंड इट आउट. किंतु ए दिटा मते ऑप्शंस रे टिके प्रॉब्लम लागिला. आई मे बी रॉन्ग. ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट माने ऑल द क्वेश्चंस तो हमें गोटे मणि तो सब ठीक करि परिबनी बट स्टिल few questions are solvable, few are not. But हमें try करिबा कि हमें 95% रो अधिका questions हमें solve करिबा through our concept. Which of the following statements are not correct with respect to the Constituent Assembly? Constituent Assembly regarding कोटा तुमरो correct नाही. 74 रो answer हिजबो. It is your D 1, 2 and 4. देखो ठीक है 1, 2 and 4 रे कौन अछि? Election held in July August 1946. Absolutely wrong. It is July 1946 रे. तो एटा भूल अछि. नेशनल कांग्रेस 200 सीट नुहे 199 सीट रे एटा पूरा भूल अछि. मुस्लिम लीग 73 ओके करेक्ट. प्रिंसली स्टेट 1 नो प्रिंसली स्टेट को एलोकेट करा जाइतला 93 जोथरे कि सेमाने पार्टिसिपेट करि नथिले तो 1 कहबाटा भूल हे जिवो. तो 1, 2 and 4 टा एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो ऑप्शन नंबर डी. 75 रो देखो शेड्यूल्स रो क्वेश्चंस आसीची बहुत ही बड़ा मते भल लागला ए क्वेश्चन टा. डिफिकल्ट थिला बट इट इज गुड. 75 रो अकॉर्डिंग टू मी आंसर सी होबा कथा कहना 2 and 4 टा भूल अछि. हैला 2 देखिबो जदी तुम्हारा शेड्यूल 3 टा इट इज नॉट रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ सीट. ओथ ऑफ अफर्मेशंस को नेकी ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ ऑफिशियल्स एंड जजेस. तो 2 टा तो भूली अछि. तापर अछि तुम्हारो 9 टा फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहूची जोटा कि भूल अछि. काहे कि ना जो लॉ दैट आर इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू अंडर द आर्टिकल 31B रे जो लॉ को जुडिशियल रिव्यू रो थ्रू इम्यूनिटी मिली सेटा को माने बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता रिगार्डिंग अछि तुमर आर्टिकल 9. अब से कह दोची कि आर्टिकल 9 ही होची फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एटा एब्सोल्युटली मते रॉन्ग लागुचे. सेति लागि से कहउतला कि व्हिच इज इनकरेक्ट पचाउतला. करेक्ट पचाउतला 2 इज करेक्ट अछि. 5 and 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एटा करेक्ट अछि. 3 and 9 टा एब्सोल्युटली भूल अछि. तो सॉरी 2 and 4 टा एब्सोल्युटली भूल अछि. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हबो व्हिच आई थिंक. हैला तापर which of the following statement are correct in respect to the electoral college in India to elect the president of India? 76 रो आंसर कोन हेबो एवरीबॉडी. यस 76 रो आंसर कोन हेबो ना तुमर ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी होची कोन तुमरो दैट इज 2 and 4 ऑप्शन नंबर बी होची 2 and 4 गोटे जिनस देखो एटी ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी इज 1 and 4 सॉरी 2 and 4 नुए इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज रे जे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो इलेक्ट करंती सेतरे के थांती इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी all added in the 70th constitutional amendment. Okay, किंतु number 2 टा टिके पढ़ो. The number and the values of votes are based on the population of 1971 census as per the 42nd amendment, 42nd constitutional amendment. Okay, it is not introduced in the 42nd constitutional amendment. Rather, at article 55(3) रे mention है कि that is the number and the values of the votes. એટલે કે 2 टा भूल अछि. तापर देखो कि 84 constitutional amendment is based on the current population census. Correct अछि? Correct अछि केटा से incorrect पचारछि ना correct पचारछि. Let me read the question first. Correct पचारछि. तो correct तुम्हारो 1 and 4 अछि. 84 constitutional amendment था जो fix the values एटा current population 2011 को नहीं की है ही नहीं. 2011 द current population census को नहीं की है ही नहीं. एबे भी जो value of vote था वो जो प्रेसिडेंट इलेक्शन रे एबे भी स्टिल बेस्ड अछि 1971 सेंसस ऊपर. तो 3 टा भी एब्सोल्युटली भूल अछि. तो आंसर तुमरो कोन हे जिवो 1 and 4. हेलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेट मी हैव सम वाटर. ऑलरेडी हमें 76 टा क्वेश्चन डिस्कस कर साइलेनी. अब अल्प क्वेश्चन अछि सरदबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द जेनेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 77 रो आंसर होची कोन. इट इज बी 2 and 3. हैला मु कहूची अदर इनकरेक्ट कोन अछि. से प्रथम देखो तुमको कहूची 2 and 3 आर द करेक्ट. तो से कहूची कि द डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट propounded by Supreme Court in Sarkari Prasad versus the Union of India. Yes. So तुम्हारो आंसर कोन अछि. आंसर आ रहबो कोन. इट इज करेक्ट पछोची 2 and 3. तो एटा तुम्हारो होची केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट्स ऑफ केरला. तो एटा भूल हे गला. तापरे आउ गोटे अछि से कहूची कि एटे देखो माने 4 टा पढ. In the case of Vaman Rao versus Union of India, Supreme Court set aside the basic structure of doctrine ना. से basic structure of doctrine को ये कर दे नथिला माने साइड कर दे नथिला. It upheld मान्यता थिला तार. It upheld the basic structure of doctrine. तो 4 टा absolutely wrong अछि and 1 टा wrong अछि. सेति लागि यार करेक्ट आंसर हे जिवो 2 and 3. करेक्ट आंसर 2 and 3 हबो हैला. तापर which are the 4 article of the Indian Constitution among the following which was added to the Indian Constitution by the 42nd amendment. 42nd amendment डायरेक्ट में जानी थी वो जो मैंने 78 रे 4 आर्टिकल थिला. yes or no. 46 ए 48 40 तुम्हारो आंसर हे जिवो कोन आरो 40 78 रो आंसर हे जिवो तुम्हारो बी माने तुम्हारो 2 3 4 6 7 3 होची 39 ए 43 ए तापरे 48 ए एंड तुम्हारो 7 that is 144 ए isn't it. 3 4 6 and 7 हैला. ए चारिटा आर्टिकल को तुम्हारो 42nd amendment constitutional act 1976 द्वारा these articles were added to the Indian constitution. आर्टिकल ऊपर रेगुलरली बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड आती भी आगो को भी this will be repeated. 79 which of the following statement are not correct with respect to the union list of the 7th schedule of Indian Constitution. These are 100 subjects in the list. This list signifies the cooperative federalism. It is absolutely wrong. 79 रो आंसर है जो तुम्हारो D. That is 2 and 4. Hello. 2 and 4 will be the second point incorrect. एटा cooperative federalism ऊपर based नुहा. एटा centralized federalism ऊपर based. तो 2 तो एकदम भूल अछि. तापर से पछो रछि कि Supreme Court has no jurisdiction. Supreme Court has jurisdiction over the matter in union list. એટલે કે 4 भी absolutely wrong ହେଲା. तो incorrect पचारथिला तो 2 and 4 absolutely correct अछि. Constitutional non constitutional bodies रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे एठी तो डायरेक्ट पचारि देछि. Which of these are non constitutional? ट्रिब्यूनल हबो कि गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ट्रिब्यूनल गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैला. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ले तमरो के आसी जिवो तुमरो क्वेश्चन नंबर 80 रो आंसर हे जिवो बी दैट इज 2 3 and 4. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एगुरा सब तुम्हारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल. ट्रिब्यूनल से गला. नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हे गला. कैग जो था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ऑल दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना.
सेतलागी से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पचारथिला तो 2 3 एंड 4 करेक्ट आंसर हबो 81 इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को नहीं की व्हिच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट 81 रो आंसर हे जिवो ए आर्टिकल 327 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू tomorrow make provision with respect to the election to legislature आरो हे जिवो 2 3 and 4 हैला 2 3 and 4 are not the से कोची not correct so article 327 regarding the correct अछि but एठी से कोची beside the chief election commissioner two additional commissioner appointed for the first time in January 1990 wrong अछि date देखो factual data बहुत आसुची परीक्षा रे October 16 1989 not 1990 तो एटा भूल हे गला the election commissioner amendment act 1990 made the commission a multi no it is not 1990 it is 1989 the 3 भी भूल हे गला the decision of the election commission by the member are made unanimous vote ना by the majority vote रे हुए एटा हैला तो ए स्टेटमेंट में डायरेक्टली देखो फैक्ट इफ यू नो द फैक्ट यू विल बी एबल टू टेल द आंसर इफ यू डोंट नो इट यू नॉट बी एबल टू टेल दैट इट इज एज क्लियर एज दैट हैला तो 2 3 4 टा तुमरो भूले गला तापरे तुमरो impeachment of the Indian president in the parliament is called आको कोन कुआ जाय व्हाट इज इट कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन अछि एटा इजी क्वेश्चन रे मको कंसीडर करबी 82 रो व्हाट इज द क्वाडी जुडिशियल प्रोसीजर आपको गोटे क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर्स बोली माने काउंट करा जाए तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया एडीजी विबरे बहुत आसे एडवोक ऊपर बहुत आसे क्वेश्चन ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर देयर इज नो डाउट इन इट हैला 83 रो आंसर हे जो तुमरो बी वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट किंतु से कहूची ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इट इज करेक्ट बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इट इज रॉन्ग ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट it is not mandatory for the to take the advice of the chief justice of high court तो एटा 2 सेटले की भूल हे गला he is eligible to be appointed as a judge correct अछि 3 टा he should be not more than 65 age रो किछि भी लिमिट नाही okay so there is no age limit so 2 and 4 is absolutely wrong and से पचेरी भी थिला कि कोटा इनकरेक्ट अछि करेक्ट पचेरी नथिला हैला तापरे गोटे प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ता ऊपर गोटे क्वेश्चन आछि which of the following statement are not correct in respect to the private member bill introduced in the parliament isn't it तो एटा कोन हे जिवो ना इंट्रोड्यूस प्रथमे देखो 2 टा एब्सोल्युटली रॉन्ग अछि से कहूची कि एटा डिबेटेड हुए इट इज ओनली ए टाइप ऑफ बिल को केवल इंट्रोड्यूस करा जाए किबा डिबेट करा जाए ऑन मंडे नो इट इज ऑन फ्राइडे तो जदि एटा जानि थिबो तुमे करि परिबो 2 टा एब्सोल्युटली रॉन्ग अछि तापर से कहूची इट इज इंट्रोड्यूस इन 1 मंथ यस एटा 1 मंथ नोटिस रे दिया जाटा तो करेक्ट अछि एब्सोल्युटली तो तुमरो से पचरुची apart from the ruling party so is a private member is a member of the parliament other than the member of treasury bench so main होची कि से member of parliament हे थिबे any member of parliament but से ruling party किबा government रो member हे नथिबे हैला ruling party किबा government रो member हे नथिबे तो तुम्हारा आंसर कोन हे जिवो आरो 83 रो आंसर हे जिवो बी हैला सॉरी 84 पचरुची 84 रो आंसर हे जिवो तुम्हारो सी just a minute I just the pen take लिख नहीं ठीक अछि so 1 and 2 will be the correct answer हैला से इनकरेक्ट पचरथिला ना करेक्ट पचरथिला it asks about the incorrect the incorrect statement होची 1 and 2 the correct answer कोटा हे जिवो c हबो correct answer हे जिवो c 1 and 2 हैला एटा it is introduced in the house it requires 1 month notice that absolutely correct अछि आउ से कहूची कि ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में बी इंट्रोड्यूस आइदर इन लोकसभा एंड राज्यसभा एटा भी एब्सोल्युटली करेक्ट अछि आज रे किछि प्राइवेट मेंबर संगरे किछि लेना देना नै एठी ट्रेजरी बेंच संगरे पाई केडा इनकरेक्ट हे गला एटा मंडेज पाई के इनकरेक्ट हे गला नलो which of the following statement is correct anti deflection law regular question चला तादरे किछि भी डाउट नै इट इज 85 रो आंसर tomorrow it is b काई कि ना एटा tomorrow 52nd amendment act हेतिला कि 52nd amendment anti deflection law found its place in the constitution by the 52nd amendment and 10th schedule of the Indian constitution inserted 1989 रे was enforced in year if any member is independent and independently
elected, joins any political party, he is not disqualified. Absolutely wrong, he is disqualified. तो देखो कि कौन पचाउची, करेक्ट पचाउची, करेक्ट पचाउची माने 4 कटि गला, जदी 4 कटि गला तुमर ए आउ डी इज एलिमिनेटेड हैला. तापर आउ गोटे जिंस देखो ए आउ डी तुमर एलिमिनेट हो गला, इजंट इट. एंड तुमे देखो एटा तुमर 52nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हेतिला. ओके यस, तार आंसर कौन हे जीवो, एटा हे जीवो तुमरो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. 1 and 3 हैला. एंटी डिफ्लेक्शन लॉ फाउंड इट्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. एटा करेक्ट अछि हैला. 10th schedule of the Indian Constitution was inserted in the Constitution in the year 1989. Yes, this is absolutely wrong. Okay. 91st Amendment Act of 2002 रे ताको इंट्रोड्यूस करा जायतिला. एंटी डिफ्लेक्शन लॉ वाज रेनफोर्स इन द ईयर 2002. एटा करेक्ट अछि. 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. त माने 2 हमर भूल अछि एंड 4 हमर भूल अछि. 4 रे कोन भूल अछि, से को जे नॉट डिस्क्वालिफाइड, एटा डिस्क्वालिफाइड हुए. 86 होची स्पेशल सेशन पार्लियामेंट रे हैला. द टर्म स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 86 रो आंसर तुमर हे जीवो डी हबो. 1 and 3 हैला. 1 and 3 रे पचार व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट करेक्ट अछि ऑब्वियसली. तापर आसीबो आर्टिकल 352(8)(b) of the Indian Constitution speaks about the special sitting of the House of Parliament. तापर the proceeding of both the House of Parliament and special section should be limited हैला. पचार की लिमिटेड. एठी देखो से जो पचार की आर्टिकल 352(b) रे से पचार की इट स्पीक्स अबाउट द स्पेशल सेशन, जेबे की आर्टिकल 352(8)(b) रे it deals with the proclamation of emergency. ततले की 2 टा पूरा भूल हे गला. and that too number 4 टिके देखो. number 3 is absolutely correct. number 4 को 4 को होची if the proclamation of emergency is not issued by the parliament, is not in session, 1/3 of the Lok Sabha and 1/3 of the Rajya Sabha asks the president to convene a special session of the parliament. एडा नाय जदि गोटे स्पेशल सेशन करिवार अछि, प्रेसिडेंट कैन डेफिनेटली डू इट. किंतु केते पार्ट ऑफ द लोकसभा एंड केते पार्ट ऑफ द राज्यसभा आसीबे, दिस रेशियो इज नॉट करेक्ट. सेतलागी 4 टा एब्सोल्युटली रॉन्ग हे गला. करेक्ट थिला हमर 1 and 3 हैला. तापरे होची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट in respect to the due process of law and the procedure established by law. Due process of law focus करूची the formal adherence to the legal process set by the government. Government जहाँ जहाँ legal procedure करची से जिनस को stick करिबा. एटा केते नंबर क्वेश्चन हम डिस्कशन करूचे 87 रो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट अछि. स्टेटमेंट नंबर 2 कहूची procedure established by law emphasizes the protection of individual right and fairness in the application of law and legal proceeding. This is wrong. This is wrong. Kind of procedure established by law refer करूची the legal doctrine. Whenever a law is passed, even if it is unfair and unjust, it is still considered to be right and it is followed if the legal procedure laid by the government is followed. हैला तामाने government जो जो legal procedure lay down करिची, जदि गोटे law से जिनस को प्रोसेस करिकी फॉलो करिकी अदर हेइची, देन इवन से लॉ जदि पास करा जायछि ताको अनफेयर और अनजस्ट कुआ जायछि, सेटा को प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कुआ जाय. तारो फेयरनेस किंबा तारो माने सी अनफेयर की सी अनजस्ट की तारो राइटियसनेस को चेक करा जायनि बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. सेति लागि तुमरो 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट हे जिवो हैला. 88 डायरेक्ट आसीबो. प्रेशर ग्रुप ऊपर क्वेश्चंस आसीछि. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द प्रेशर ग्रुप टू बी इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी. एटा कोन हे जिवो access to the media outlet. 89 करिया. Which of the following are correct in sustainable public policy are those which कौन है जीवो 89 रो आंसर कौन हबो. 89 रो directly distribute benefits to the cost of citizen, allocate resources services to a particular segment, impose restriction, plan and program. So तुम्हारे 89 रो आंसर है जीवो कौन C, that is only 2. only 2 माने को स्टेटमेंट है तुम्हारा allocate resource and service to a particular segment of a larger society. तापर तुम्हारा which of the following policy provided tax refund on all part of a poor family social security task. अभी कोडा everybody income earned income tax credit है ना. 90 रो आंसर कौन है जीवो B. 91 a public policy may be general or specific, correct, broad and narrow, correct, positive or negative, correct, rational and irrational, no.
rational and irrational हुएनि तो ऑप्शन नंबर 1 2 and 3 जेटा कोडा हे जीव 91 रो सी डायरेक्ट आंसर तापरे distributive public policy which of the following statement are correct regarding distributive public policy it is known as a patronage policy absolutely correct hello तापरे it means to a specific segment of society correct अछि it requires little administrative discretion correct अछि so 1 2 and 4 92 ର आंसर कोन हे जीव a किंतु तमे जदि देखिबो it is concerned with the regulation and control of goods and services ना it जेटा कहा अंडर रे आसे regulatory policy अंडर रे आसे तो 3 टा तो नुआ बिल्कुल भी 93 which of the following article is only for the Indian citizen not for the foreigners not available for the foreigners 93 बहुत ही repeated question एटा परीक्षा रे article 15 16 19 29 and 30 93 रो आंसर कोन हे जीव d हैला 94 list of amendment in the Indian constitution ये की which is related to the scheduled caste and scheduled tribe आ भितर को article गुरा माने को amendments गुरा तुमरो SC and SC of India को माने रेफर करे 94 रो को article हे जीव 8 19 46 and 102 हैला 8 19 46 and 102 which of the following statement is not correct with respect to right to privacy under रे कोटा तुम्हारा correct 95 रो आंसर will be c माने 2 and 4 is not correct देखो तो JS खेकरा हितले who was the former 42nd chief justice of India it is absolutely correct but he did not head the 9 judge bench for the right to privacy case तो सेठी लगी सेटा भूल हे गला हैला तो सीए डेफिनेटली ही वाज द 42nd चीफ जस्टिस किंतु सीए से जो 9 मेंबर जज बेंच रो जो राइट टू प्राइवेसी पाई कि सेथिरे से नथिले ही वाज नॉट ही डिड नॉट हेड दैट सेति लागि सेटा भूल हे गला कोटा 4 भूल हे गला एंड दैट टू तुमरो एटा जो अछि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव इट्स हिस्टोरिक जजमेंट अगस्त 24 18 रे 17 डेट अथिला 2017 रे सेति लागि 2 and 4 ता तुमरो रॉन्ग हे गला हैला which of the following is not included in article 19 of the Indian constitution कोटा भितरे article 22 रे भितरे गोटे अछि freedom of from detention बाकी speech expression movement association ठीक अछि but article 22 रे आसु जाउति तुम्हारा freedom from detention हैला and declaration of the right of the child was passed by UNO केबे को year रे yes 97 रो d 1959 date केबे November 20 hello 98 land degradation is caused due to soil erosion and water logging yes deforestation is a major cause of soil erosion yes both are correct absolutely correct kete easy question asi environment ro tapre land degradation in India happens at a larger scale kahe ki because soil conservation adequate measures niya jauni overgrazing hochi correct achi pura 99 ro kon he jibo both A and B 99 last question of the paper there is a huge loss of valuable nutrients and fertility in India what are the reason कौन soil erosion और कौन land degradation नुए soil erosion बहुत माने valuable nutrients and fertility India रे reduce होची काहे की होची land degradation में land degradation is not the primary cause water logging is not the primary cause air pollution is not has nothing to do with this it is soil erosion deforestation पाएंगे soil erosion पाएंगे land degradation होची हैला and ultimately tomorrow valuable nutrients and fertility loss hochi hala so with this we came to an end of the discussion of the 100 questions abhitere I think so 23 ta I had doubt isn't it mu tar answer तुमको कहि दोची तार explanation mu tomorrow comment box रे because तार गोटे options को नहीं कि I am 100% sure 23 let me go to the question first yes a question yes a question एटा मु पूरा श्योर अछि 4 is absolutely wrong 4 is absolutely wrong and yes a question रे टिके ambiguity अछि ए क्वेश्चन ambiguity अछि ऑप्शन नंबर बी और डी रे टिके कंफ्यूजन अछि हैला क्वेश्चन नंबर 23 रो हैला टिके मु श्योर नै याको भी नोट डाउन करथिली यादर मते बी और डी रे टिके कंफ्यूजन अछि
बाकी तो को क्वेश्चन रे कंफ्यूजन नथिला आउ गोटे क्वेश्चन सेटा मु कंप्लीटली माने तार ऑप्शन रे मते प्रॉब्लम अछि सेति लागि से क्वेश्चन रो आंसर मु देलिनी ए क्वेश्चन रे भी आई एम कंफ्यूज विथ ऑप्शन नंबर बी आउ डी हैला एटा मु नोट डाउन भी करथिली एटा की चेक कली आई एम मु एब्सोल्युटली मोटा जानि कि 2 टा भूल अछि आई एम श्योर अबाउट इट बट ए डेट टा टिके खाली चेक कर दबो हैला ए डेट टा चेक कर दबो एंड ऑप्शन रे 2 आउ 2 3 मन से पचारछि ना कि व्हिच इज नॉट व्हिच आर करेक्ट सो 2 3 आउ देखो बी रे भी 2 3 अछि डी रे भी 2 3 अछि सेति लागि बोथ द ऑप्शन रे ही मु टिके कंफ्यूज अछि सेति लागि वी विल सी टू दिस क्वेश्चन मते टिके टाइम दरकार ए क्वेश्चन ऊपर ये करया पे बट बी डी ऑप्शन टा मते लागुछि मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट हबो हेलो ठीक अछि so with this we come to the end of the discussion so kali aji to mu gs paper 1 ta it took time to solve the entire paper the question was good safe attempt mu एते जल्दी कहि परिबेनी it needs time the student को संगे डिस्कस करया में पड़िबो केते कोन अटेम्प्ट करचंती but yes 50% of the paper doable अछि काहे कि ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आसी कि वन लाइनर आसी कि माने जदि ऑप्शंस भी आसी कि सेटा भी माने एलिमिनेशन द्वारा करी होची बट किछिटा क्वेश्चन अछि ना 15 टा रु 20 टा क्वेश्चन एमिति अछि जोथरे टिके डेप्थ जिंस जानि थिले ही से क्वेश्चन को अप्रोच करी हबो अदरवाइज से क्वेश्चन भूल हबार चांसेस अधिक अछि सो लेट्स सी कोन होची बहुत जल्दी ही तार आसी जीवो ऑफिशियल आंसर की आसी जीवो तापरे आमे क्लेम करि परिबा कि वेदर हम जदि को आंसर को चैलेंज करया पे कि चाहूचे बट आई थिंक सो मेजरली आंसर करेक्ट ही थिबो ठीक अछि सो विथ दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो मैंने भी कट ऑफ पखापखी लास्ट ईयर कट ऑफ पखापखी जो मैंने भी स्कोर करूचंती तो डेफिनेटली मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियो एंड मेंस प्रिपरेशन तो डेफिनेटली स्टार्ट करो कहीं कि ना वेदर प्रीलिम्स क्लियर करो कि न करो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तो पुणी एग्जाम दबो ना तो से प्रिपरेशन केबे भी वेस्ट जीवनी एंड सीसैट रो डिस्कशन टा तुमरो काली अपलोड कर देबी वीडियो हैला निजरो फीडबैक कमेंट सेक्शन रे निहाती जणैबो चैनल को जदि नुआ अछि देन सब्सक्राइब करि नबो ए चैनल रे ओपीएससी ओडब्ल्यूएससी और ट्रिपल एससी रिलेटेड वेरियस कंटेंट्स आगु को मु पकेया को जाउछि दिस अ वेरी फ्रेश चैनल एबे ही स्टार्ट करछि चैनल टा एंड इनिशिएटिव रहइबो कि मु ओडिसा रे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रे जते भी मटेरियल्स मो पाखे अवेलेबल अछि जते भी मो पाखे जिंस को नै कि एक्सपर्टीज अछि से सब जिंस मु स्टूडेंट्स मानो को पाए कि एस्पिरेंट्स मानो को पाए कि जते दूर पॉसिबल मु एफर्ट दे पारे एंड मु सपोर्ट करि पारे ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे गुड नाइट एवरीवन हैव अ नाइस डे